माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दिस इज योर चैप्टर नंबर 9 एंड विच टॉपिक वी कवर इन इट? MS Word 2010, Word window, entering text, selecting text, formatting text, saving a document, opening a saved document, closing a document, and exiting Word. Okay, sir. These topics we covered in this chapter. Okay. The first topic of in this chapter is Microsoft Word 2010. Microsoft Word is a word processor program which help us to write letters and report beautifully. Okay. Microsoft Word क्या है? एक word processor program है. This is the word processor program which help us with the help of this application, word processor application, we can write letters and report beautifully. Means हम इसमें letters, reports and any other texting work इसमें easily कर सकते हैं. Like अगर कुछ भी आपको इसमें writing करना है document के अंदर, तो आप बहुत easily, बहुत beautifully इसके अंदर उसे लिख सकते हो. Okay. You can add border, shading, tables and graphics in the document. We can also add borders. हम इसमें borders भी add कर सकते हैं, shading भी add कर सकते हैं. Shading means colors. Tables भी add कर सकते हैं. We can also add the tables in it. Graphics also we can add graphics, like we can insert the picture in this application. Okay. And the symbol look like this. जो W लिखा हुआ है ना, कुछ इस टाइप से सिंबल यूज होता है, शो होता है आपको इसका एप्लीकेशन का. Okay. And the application called Microsoft Word. Word is the application name and Microsoft is a company name. That company make it this application. Microsoft एक company है. Okay, you all know what is Microsoft. Microsoft is a IT company जिसने ये application बनाया हुआ है, डेवलप किया है. जो आपका विंडो भी इसी कंपनी ने क्रिएट किया हुआ है. जो विंडोज है ना, आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो डेवलप्ड. And second is starting Word 2010. How to start the Word 2010? अगर हमें एप्लीकेशन ओपन करना है अपने कंप्यूटर में ये वर्ड का, तो हम कैसे ओपन करेंगे? This process, these steps are according to Windows 7. जो आपको ये steps शो कर रखे हैं 1 2 3 4, like click on the start button, click on all programs, click on Microsoft Office and click on Microsoft Word 2010. These steps are according to Windows 7. ये Windows 7 के according step हैं. Because if like in my laptop have a Windows 10, मेरे laptop में Windows 10 है, and if I click on start button, अगर मैं Windows 10 में start button पे click करता हूँ, you see the difference. आपको difference दिखेगा. आपको इसमें कहीं पर भी start menu दिखेगा, but all programs नहीं शो होगा. Like this. विंडो 10 में जो आपके ऑल प्रोग्राम्स हैं वो एक लिस्ट में अल्फाबेटिकली यहाँ पर शो हो जाते हैं. आप इसमें सर्च कर सकते हो. आपको स्टार्ट मेन्यू, व्हेन यू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, द स्टार्ट मेन्यू इज अपीयर. स्टार्ट मेन्यू तो ओपन हो गया है, बट ऑल प्रोग्राम्स इज ऑप्शन नॉट अपीयर इन विंडो 10. जो ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन इसमें दिखा रखा है स्टेप 2 में, वो ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑल प्रोग्राम ऑप्शन इज अ पार्ट ऑफ विंडोज 7 एंड दिस इज अ विंडो 10. आजकल जितने भी न्यू लैपटॉप्स हैं या करंट में जितने भी न्यू लैपटॉप्स आ रहे हैं मार्केट में, सब में विंडो 10 आ रहा है, और 10 में ये फीचर नहीं होता है. इन विच इफ यू वांट टू सर्च एनी एप्लीकेशन, इसमें अल्फाबेटिकली एप्लीकेशन लिखी होती है, या आप नीचे सीधा सर्च में ले आकर सर्च कर सकते हो. ओके, सिंपली आप सर्च कर सकते हो जो भी आपकी एप्लीकेशन का नाम है. लाइक दिस, अगर मैं W लिखूंगा तो आप देखोगे सेकंड एप्लीकेशन पे नाम आ गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007. मेरे इसमें कौन सा पड़ा हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 है. दिस इज द 7th वर्जन. अभी जो इसमें आपके चैप्टर में है, दिस इज अकॉर्डिंग टू 10th वर्जन 2010. ओके, आप इसमें कुछ इस टाइप से सर्च करते हैं, जो आपको इसमें स्टेप शो कर रखे हैं. दीज आर अकॉर्डिंग टू विंडोज 7. एंड व्हेन यू इफ यू हैव इन योर कंप्यूटर विंडोज 7, the steps is simple. Click on start button, the start menus appear like that. Okay, click on all programs. When you click on all programs, the next menus appear, in which you click on Microsoft Office. And in Microsoft Office, when you click on Microsoft Office, in which you see the option have Microsoft Office 2010. And Microsoft Office is a package in which we have all software. Microsoft Office 2010 also, or Microsoft Office Word also. Okay,
ये जो वर्ड है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है जिसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जिनमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी एक सॉफ्टवेयर है, लाइक MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दीज आर द पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एक माइक्रोसॉफ्ट पैकेज है, उसके अंदर का एक पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसलिए जो आपको जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिलता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर मिलता है। ओके, कुछ इस टाइप से ये इसमें वर्किंग करते हैं आपके जो पैकेज हैं सॉफ्टवेयर के। एंड व्हेन यू क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सॉरी वर्ड, अगर आप जब आप एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, इट्स ओपन लाइक दैट। द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विल अपीयर विद एन एम्प्टी डॉक्यूमेंट टाइटल डॉक्यूमेंट 1। बाय डिफॉल्ट जब आप फर्स्ट टाइम या कभी भी कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो, स्पेसिफिकली वर्ड एप्लीकेशन जो आपने अभी जैसे ओपन किया है, बाय डिफॉल्ट वो एम्प्टी होता है, मींस ब्लैंक होता है, जैसे अभी ये खाली है। और इसका जो नेम है, बाय डिफॉल्ट जो नेम सेट रहता है वो क्या नेम सेट रहता है? डॉक्यूमेंट 1। बाय डिफॉल्ट जो नेम सेट रहता है इसका डॉक्यूमेंट 1 सेट रहता है। ओके, अपनी बुक में आप देखना, इसमें आपको क्लियर नहीं दिख पाएगा, बुक में देखना इसमें डॉक्यूमेंट 1 लिखा होगा, ऊपर टाइटल बार में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साइड में डॉक्यूमेंट 1 लिखा होता है। बाय डिफॉल्ट ये नेम आता है, ये हम नहीं रखते हैं, बाद में हम इसे चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी हमें नेम रखना है। ओके, नेक्स्ट इज वर्ड विंडो। ओके, इस टाइप से आपका एक वर्ड विंडो ओपन हो जाता है। आफ्टर स्टार्टिंग MS वर्ड, व्हेन यू क्लिक ऑन MS वर्ड, यू विल गेट अ विंडो ऑन योर डेस्कटॉप। आपके डेस्कटॉप पे एक विंडो अपीयर हो जाता है लाइक दैट। ओके, द वर्ड विंडो डिस्प्लेज मैनी आइटम्स। वर्ड विंडो में क्या होता है, आपको बहुत सारी आइटम्स दिखते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अपीयर होते हैं। यू कैन यूज टू क्रिएट एंड वर्क विद योर डॉक्यूमेंट। उन ऑप्शंस को यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो और अपने वर्ड में वर्क कर सकते हो लाइक दिस। इस टाइप से एक वर्ड विंडो ओपन हो गया आपके स्क्रीन पर लाइक दिस। ओके, एंड यू सी मैनी ऑप्शन इन इट। आपको काफी सारे इसमें ऑप्शन शो हो रहे हैं, लाइक इन अ टाइटल बार, टॉप पे आपकी टाइटल बार होती है, एंड इन टाइटल बार यू सी राइट हैंड साइड प्रोग्राम कंट्रोल बटन्स। इट्स कॉल्ड प्रोग्राम कंट्रोल बटन्स। With the help of program control button, you can minimize the window, this window, maximize and close also. In right hand side, the close button, red button is also we have. This is called close button. These are the program control button. And in title bar, left hand side, you see the quick access toolbar. Some options, some buttons by default, save, redo and undo buttons we have in a quick access toolbar. And below the title bar के अगर आप नीचे देखोगे, वी हैव फाइल बटन, हमारे पास फाइल बटन होता है, एंड रिबन टैब होता है। इन सबको हम रिबन टैब बोलते हैं। रिबन टैब के अंदर हमारे कौन कौन से टैब्स होते हैं? फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। दीज आर द टैब दैट वी कॉल्ड रिबन टैब। आप इन्हें सिंपली टैब भी बोल सकते हो, लाइक इंसर्ट टैब, होम टैब, या रिबन टैब भी बोल सकते हो। ओके, एंड एवरी रिबन टैब हैव अ रिबन। अगर जब भी आप किसी रिबन टैब पर क्लिक करते हो, इस टाइप से एक रिबन शो होता है। अभी आपको रिबन टैग कर रखा है, इन्होंने आपको हाईलाइट कर रखा है व्हाट इज रिबन, या आपको रिबन शो कर रखा है, इसे बोलते हैं हम रिबन। जिसमें आपको काफी सारे ग्रुप्स होते हैं, लाइक क्लिपबोर्ड ग्रुप। इसमें जो आपको ग्रुप शो हो रहे हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप, टेक्स्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, इस टाइप से एवरी रिबन बी यू सी द रिबन इज लुक लाइक दिस। इस टाइप से रिबन शो होता है आपका। एवरी रिबन टैब हैव अ रिबन। हर रिबन टैब का एक रिबन होता है। अगर आप ये टाइम जो आपके सामने ओपन है, दिस इज द रिबन ऑफ होम टैब। ये आपने होम टैब पे क्लिक कर रखा है, ये होम टैब का रिबन है। ओके, एंड अगर आप इफ यू क्लिक ऑन इंसर्ट टैब का एक रिबन अलग तरीके से ओपन होगा। पेज लेआउट टैब का रिबन डिफरेंट, उसके अंदर डिफरेंट कमांड्स एंड डिफरेंट बटन्स होंगे। एंड अगर आप उससे नीचे आते हो, यू सी द इंसर्शन पॉइंट। आपको एक इंसर्शन पॉइंट दिखेगा, इट्स अ ब्लिंकिंग लाइन। ये एक लाइन सी होती है, डैश सा बना हुआ, ये इसे बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट। साइड में आपको स्क्रॉल बार्स मिलती है, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है, एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नीचे होती है, वर्टिकल साइड में होती है। टू स्क्रॉल बार्स वी हैव। एंड व्हाइट एरिया वी कॉल्ड वर्क एरिया। जो व्हाइट एरिया होता है बीच में, इसे बोलते हैं वर्क एरिया। स्टेटस बार इन बॉटम वी हैव द स्टेटस बार। जो बॉटम में हमारे पास क्या होता है? स्टेटस बार होता है। इन स्टेटस बार में आपको एक स्टेटस बार में आपको साइड में व्यू डॉक्यूमेंट्स में मिलेगा, व्यूज ऑफ डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन होता है। एंड उसके साइड में ही बिल्कुल आपको जूम का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे आप अपने पेज को जूम और जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। लाइक जो बाय डिफॉल्ट पेज का जो साइज होता है वो 100% होता है।
जूम स्लाइडर की हेल्प से आप उसे 100% से कम भी कर सकते हो और 100% से ज्यादा भी कर सकते हो। ओके, अब बेटा आप पूछ रहे थे ना क्वेश्चन, आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर एक एक पॉइंट को इन्होंने डिस्कस कर रखा है। लाइक टाइटल बार, सबसे पहले हमने टाइटल बार पढ़ा था। टाइटल बार क्या है? द टॉप मोस्ट बार ऑफ द विंडो दैट डिस्प्ले द नेम ऑफ द करंटली एक्टिव वर्ड डॉक्यूमेंट। टाइटल बार क्या है? आपके वर्ड विंडो की सबसे टॉप मोस्ट बार होती है, सबसे ऊपर की बार होती है, जिसमें आपको क्या क्या शो होता है? आपका जो भी करंटली डॉक्यूमेंट ओपन है उसका नेम शो होता है एंड सॉफ्टवेयर का नेम शो होता है। यू सी द फर्स्ट टाइटल बार में क्या शो हो रहा है आपका? डॉक्यूमेंट वन। डॉक्यूमेंट वन एक क्या है? डॉक्यूमेंट का नेम है, और साइड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, आपकी वर्ड विंडो का नेम, जो आपकी एप्लीकेशन का नेम है। ये आपकी टाइटल बार में शो होते हैं। एंड यू ऑल्सो सी द कंट्रोल बटन एंड क्विक एक्सेस टूल बार इन टाइटल बार। सेकंड इज फाइल टैब। व्हेन यू क्लिक ऑन फाइल टैब अ बैकस्टेज व्यूज अपीयर। एक फाइल टैब भी होता है आपका साइड में, ये आपको इन्होंने हाईलाइट कर रखा है ग्रीन कलर से, आप देख सकते हो। फाइल टैब, इन फाइल टैब व्हेन यू क्लिक ऑन फाइल टैब अ बैकस्टेज व्यू अपीयर्स। जब भी आप फाइल टैब पे क्लिक करते हो एक व्यू ओपन होता है साइड में, जिसे हम बैकस्टेज व्यू कहते हैं। एक सेपरेट लिस्ट ओपन हो जाती है, दिस इज आल्सो कॉल्ड बैकस्टेज व्यू। उसमें एक मेन्यू होता है, इन विच वी हैव मेन्यू। ओके, एंड इन बैकस्टेज व्यू you will find a list of commands। उसमें काफी सारी कमांड्स की लिस्ट होती है, लाइक सेव, ओपन, सेव एज, प्रिंट, एग्जिट एटसेट्रा। इनके अलावा भी काफी होती हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। फाइल टैब में आपको ये चीजें दिख जाती हैं। एंड नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार। इट डिस्प्ले क्विक एक्सेस बटन फॉर सेव, अंडू एंड रीडो कमांड्स। इन क्विक एक्सेस टूल बार वी हैव बाय डिफॉल्ट 3 बटन, सेव, अंडू एंड रीडू। ओके, ये आपको 3 बटन्स मिलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। बेसिकली क्विक एक्सेस टूल बार में हम उन्हें बटन्स को ऐड करते हैं जिन्हें हमें क्विकली एक्सेस करना होता है, सिंपल क्लिक करके एक्सेस करना होता है। जरूरी नहीं है 3 बटन ही रहते हैं इसमें, इसके अलावा इसके साइड में आपको छोटा सा एरो दिखेगा, उसकी हेल्प से आप इसमें और भी बटन्स ऐड कर सकते हो क्विक एक्सेस टूल बार में, जो जितने आप चाहो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ओके, नेक्स्ट इज रिबन। डिस्प्ले अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स इन टैब। रिबन्स में क्या शो, रिबन में क्या शो होता है आपको? ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स इन टैब्स। जो टैब्स में आपके ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स होती हैं वो आपको रिबन में शो होती हैं। ईच टैब ऑफर्स शॉर्टकट बटन टू कॉमन टास्क एंड ईच टैब ऑफर्स अ शॉर्टकट बटन्स टू कॉमन टास्क। और हर टैब में कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, कुछ बटन्स होते हैं, कमांड्स के बटन्स होते हैं, जिन्हें हम डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए यूज कर सकते हैं। आई ऑल्सो शो यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके, जब भी ये टॉपिक आएगा मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा अभी कैसे करते हैं। नेक्स्ट इज इंसर्शन पॉइंट। व्हाट इज इंसर्शन पॉइंट? इंसर्शन पॉइंट इज अ फ्लैशिंग लाइन। इंसर्शन पॉइंट क्या है? एक फ्लैशिंग लाइन है जो लाइन ब्लिंक होती रहती है। ये भी आपको दिखाऊंगा मैं किस टाइप से इंसर्शन पॉइंट शो होता है आपको। इंसर्शन पॉइंट इज अ फ्लैशिंग लाइन ऑन द स्क्रीन दैट इंडिकेट्स वेयर द टेक्स्ट यू टाइप विल अपीयर। मींस जहां भी आपका इंसर्शन पॉइंट होगा, जब भी आप वर्ड में लिखोगे वहीं से आपका टेक्स्ट अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। कहां से? जहां पे आपका इंसर्शन पॉइंट उस टाइम पर होगा। ओके, जब आप प्रैक्टिकली देखोगे जब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जब भी ये टॉपिक आगे आएगा प्रैक्टिकली तो हम आपको इसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज रिबन टैब। You know what is ribbon tab? We have some ribbon tab also, like file tab, home tab, insert tab, page layout tab, reference tab, mailing tab, review view tab. These are some tabs we have. This is also called ribbon tab. And each tab provides a set of tools. हर टैब के अंदर क्या है? एक सेपरेट कुछ टूल्स अवेलेबल है। मीन्स हर टैब का एक रिबन, हर रिबन टैब का एक रिबन है जिसके अंदर टूल्स है रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टास्क। मतलब जो भी आपको पर्टिकुलर टास्क करना है उससे रिलेटेड टूल्स आपको मिल जाएंगे। लाइक आपने टाइप करा वर्ड, आपने कुछ टाइप करा और आपको फिर उसका साइज इंक्रीज करना है, उसका भी टूल अवेलेबल है। आपको कलर चेंज करना है, उसका भी टूल अवेलेबल है। काफी सारे हाईलाइट करना है, उसका भी टूल अवेलेबल है। सारे टूल्स आपको अवेलेबल कहां पर होंगे? रिबन टैब्स के अंदर अवेलेबल होंगे। डिफरेंट डिफरेंट टैब के अंदर, रिबन टैब के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स अवेलेबल है। आपकी फाइल्स के अकॉर्डिंग जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट में परफॉर्म करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, उससे रिलेटेड आपको उसमें टूल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज व्यूज ऑफ डॉक्यूमेंट।
प्रोवाइड एक्सेस टू 5 डिफरेंट व्यूज ऑफ योर डॉक्यूमेंट। हमारे जो डॉक्यूमेंट व्यू में टोटल 5 व्यूज होते हैं वर्ड में। बाय डिफॉल्ट जो हम वर्क करते हैं वो वर्क करते हैं नॉर्मल व्यू में, एंड टोटल कितने व्यूज होते हैं? 5 व्यूज होते हैं, 5 व्यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्क्रॉल बार। द स्क्रॉल बार helps you to move the content of a document up, down and right and left. Scroll bar, with the help of scroll bar you can move the content up, down, right and left. जो आपके साइड में स्क्रॉल बार होती है ना, जैसे मैं अभी साइड में मेरे जो ये पीडीएफ चल रहा है, आप देखोगे इसके नीचे भी एक स्क्रॉल बार है, ये जिसको मैंने अभी क्लिक करूंगा तो हाईलाइट हो जाएगी, और इसके साइड में भी स्क्रॉल बार है, ये यू सी, जिसकी हेल्प से मैं इसे डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे कर सकता हूं। ओके, यू सी दिस इज द स्क्रॉल बार, दिस इज द स्क्रॉल बार। सेम यही वर्क होता है स्क्रॉल बार का वर्ड में भी। इसकी हेल्प से हम अपने कंटेंट में, अपने फाइल में ऊपर नीचे जा सकते हैं और लेफ्ट राइट में इजिली मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल बार। ओके, नेक्स्ट इज स्टेटस बार। It provides information about the area of any document display on the screen. Means जो भी आपने डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट अपनी वर्ड में खोला हुआ है, वो आपको क्या बताता है? उसकी इंफॉर्मेशन देता है। किस टाइप की इंफॉर्मेशन? लाइक हाउ मेनी पेजेस इन दैट डॉक्यूमेंट, ओके, एंड हाउ मेनी वर्ड्स यू टाइप्ड इन दैट डॉक्यूमेंट, हाउ मेनी कैरेक्टर, एंड द पोजीशन ऑफ द इंसर्शन पॉइंट, एंड which language you are using on that time. All things are available in a status bar. अभी स्टेटस बार में सबसे बॉटम की बार होती है, स्टेटस बार में आपको सब चीजें इंफॉर्मेशन ये मिल जाएंगी। ओके, ये सब आपको नीचे स्टेटस बार में आप ध्यान से देखो, आपको सब चीजें यही दिखती हैं। These things are available in a status bar. नेक्स्ट इज प्रोग्राम कंट्रोल बटन्स। प्रोग्राम कंट्रोल बटन में क्या क्या होते हैं? आपके 3 बटन्स होते हैं। विंडो एक तो होता है मिनिमाइज, नेक्स्ट इज मैक्सिमाइज बोलते हैं, जिसे हम रिस्टोर भी बोल देते हैं, रिस्टोर बटन द फुल साइज, एंड नेक्स्ट इज क्लोज बटन। पहले मिनिमाइज होता है, फिर मैक्सिमाइज होता है, एंड लास्ट में होता है कॉर्नर में क्लोज बटन। ओके, वर्क एरिया, इट इज द एरिया इन द डॉक्यूमेंट विंडो where you enter or type the text of your document. The work area is that area where you type your text, or you can insert your choosing pictures. जो भी आपको टाइप करना है वो वर्क एरिया में, जो भी हमें वर्क करना है उसके लिए हमारे पास वर्क एरिया होता है, उसके अंदर हम करते हैं जो भी हमें करना होता है वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। ओके,